under Section 12A, registration process, FCRA account maintenance and compliances, Form 10B, tax deductions guidelines, to name a few. This discussion would support the grassroots organizations to deal with the new rules and regulations in the development sector. Also to understand the operational queries with regards to FCRA and income tax. Apart from that, we would also be discussing on their relevant do's and don'ts related to legal compliances. Since we have been dealing with most of the grassroots organizations, we believe that this topic would support them to operate seamlessly. As always, we promise you will also get your chance to place your own queries before our subject matter expert. The duration of the webinar would be 1 hour and 15 minutes, and we would request you to kindly switch on your cameras and mute your audio so that you would take away the key information from this discussion. मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के अंत तक जुड़े रहे और साथ ही अपने माइक्स म्यूट पे रखें और वीडियो बैकग्राउंड्स को एथिकल रखें. As an organization, we believe that our new initiative will definitely create an impact in the development sector and create a sustainable learning platform for all of you. Before moving ahead, I would now like to welcome our CEO, Mr. Santosh Gupta. As you all know that Mr. Santosh is one of the well-known social workers in our country, has been tirelessly supporting and networking for the grassroots for more than 2 decades now, and also established an impactful platform like the Indian Social Responsibility Network. We believe that we can't explain his footprint in a few lines, but moreover, as we know that Mr. Santosh is serving as the CEO and founder trustee of ISRN. His expertise lies in disaster management and corporate social responsibility, sustainable development and management, organizational development, result-based management, and quality assurance of program delivery. Formerly, he was associated with the Ministry of Home Affairs, Government of India, and also with several international organizations such as the UNDP, UNICEF, and also national institutions like the DDMA, Government of NCT of Delhi, and NIDM in different leadership positions. He has served as a member of the Expert Appraisal Committee, Non-Coal Mining, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, and giving their expert inputs as a member of the State Level Vigilance and Monitoring Committee for the State of Uttar Pradesh, Ministry of Rural Development, Government of India. He has more than 2 decades of enriching experience and has been playing a key role for the success of the Indian Social Responsibility Network. I would like to now welcome Santosh ji and hand over the session to set the context for the discussion. Welcome aboard, Santosh ji. Thank you. Thank you, Farjana. Thanks for a nice introduction. सभी को नमस्ते. मैं on behalf of ISRN, I welcome to all of our participants and especially today our guest subject expert, chartered accountant राजेश बलानी जी. आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में. और जैसे कि फरजाना ने ऑलरेडी इस प्रोग्राम का जो बैकग्राउंड है वो आप सबके सामने रखा है और आप सब जानते हैं अभी तक हमारे साथ 83 पार्टिसिपेंट्स जूम पे हैं और आई होप कि यूट्यूब और फेसबुक पे भी काफी लोग जुड़े हैं. तो जैसा कि मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बताया था, बट आज कुछ नए साथी जुड़े हैं, उनको मैं ध्यान में रखकर सिर्फ एक एनजीओ क्लिनिक जो कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ और उस पे हम लोगों ने काम करना स्टार्ट किया, उसको टच करते हुए मैं आगे सब्जेक्ट की तरफ जाऊंगा कि ये जैसा आप जानते हैं कि इंडियन सोशल रिस्पांसिबिलिटी नेटवर्क एज अ नेटवर्क ऑफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन 2014 से काम कर रहा है और पिछले 9 सालों में ऑर्गेनाइजेशन के साथ देश भर में 800 से ज्यादा संस्थाएं पूरे देश में जुड़ी हैं. हमारा जो नेटवर्क है ऑलमोस्ट हम 28 स्टेट में मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहे हैं. पिछले
9 सालों में ISRN ने जो एक इम्पॉर्टेंट मैंडेट है ISRN का कैपेसिटी बिल्डिंग, उसको लेके काफी वर्कशॉप, सेमिनार, वेबिनार्स किए हैं। ड्यूरिंग द कोविड भी हम लोगों ने काफी काम किया और अपनी मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रिलीफ में इन्वॉल्व रहे। तो आज ये जो ISRN का नेटवर्क है, ये वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से बना है और उनको आगे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए जो बेस्ट एफर्ट्स हो सकते हैं, हम लोग उसके लिए दिन रात काम कर रहे हैं। ISRN की पूरी टीम आपके साथ है और आपके साथ रेगुलर टच में है। और इसी सब विषय को ध्यान में रखकर जब कुछ महीने पहले, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कोविड में जो 2 साल लॉकडाउन रहा और अभी इंडिया जिस तरह से इकोनॉमिकली ट्रांसफॉर्म हो रहा है और जो न्यू रूल्स रेगुलेशंस आ रहे हैं, उनको लेकर वॉलेंट्री सेक्टर में जैसे अदर सेक्टर्स पे जो इम्पैक्ट पड़ा है, वैसे ही वॉलेंट्री सेक्टर पे भी काफी इम्पैक्ट हुआ है। और जो मैं ट्रांसफॉर्म वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि ये मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि वॉलेंट्री सेक्टर के लिए भी ये ट्रांसफॉर्मेशन फेज है। और अब जो एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थे, उससे हम न्यू प्रैक्टिसेस की तरफ मूव कर रहे हैं। नेचर ऑफ डोनर्स, नेचर ऑफ एरिया, नेचर सब्जेक्ट, सब कुछ चेंज हो रहा है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन फेज में वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस को भी अब जरूरत है चेंज होने की और उनको नए एरिया में काम करने की, और जो भी काम करें उसकी सस्टेनेबिलिटी, इम्पैक्ट को फोकस रखकर अगर काम करते हैं तो काफी अच्छे रिजल्ट आने की संभावना दिख रही है। और इस थॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन, जब मेंबर ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग मतलब रेगुलर बेसिस पे डिस्कशंस होते हैं, तो उस डिस्कशन में एक ये बात निकल कर आई कि ISRN को ये लीड लेनी चाहिए कि जो भी करंट अफेयर्स हैं या जो करंट प्रॉब्लम्स हैं वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस की, उनको मंथली बेसिस पर या डे टू डे बेसिस पर एड्रेस किया जाए। क्योंकि आज इंटरनेट आने से इंफॉर्मेशन जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो तो काफी इजी हुआ है। सब कुछ हम सर्च करके इमीडिएटली देख सकते हैं विद इन अ मिनट। बट बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन मिलने के बाद भी क्लियरिटी नहीं होती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपर्ट्स के साथ इंटरेक्शंस होना बहुत जरूरी है। रेगुलर बेसिस पे हो, डिफरेंट टॉपिक्स पे हो, हर थेमेटिक एरिया को टच किया जाए। और साथ में सिर्फ हम ये जो NGO क्लिनिक कॉन्सेप्ट है, जो सीरीज ऑफ प्रोग्राम है, एक सस्टेनेबल प्लेटफॉर्म है, इसको हम सिर्फ डायलॉग या कंटेंट डिलीवरी मोड में ना रखें, बल्कि हम साथ में इसके थ्रू हम 1-to-1 बेसिस पे इंडिविजुअल सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकें। तो मैं उसमें प्रोग्राम के अंत पर उस पर डिटेल में बात करूंगा। सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का जो सब्जेक्ट है, आप सबको मालूम है कि आज हम लोग किस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं, और इसीलिए आप सब यहाँ पर आए हैं, जुड़े हैं। आज का सब्जेक्ट, जैसे आपको मालूम है कि हम लोग अंडरस्टैंडिंग लीगल कंप्लायंसेस पे बात कर रहे हैं, और लीगल कंप्लायंसेस की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब जनरल बातें हैं, हम सब जानते हैं इसको, और जो भी लोग NGO सेक्टर में काम कर रहे हैं वो इसको फेस भी कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कार्यक्रम में बहुत सारे सीनियर लोग भी जुड़े हैं जिनका वर्षों का एक्सपीरियंस है वॉलेंट्री सेक्टर का। डॉक्टर रेणुका रामाकृष्णन है तमिलनाडु से, वो जुड़ी हैं। विजय मारू जी जुड़े हैं झारखंड से। ऐसे और भी मैं नाम जो मुझे दिख रहा है मैं बीच में कोट करूंगा, कोशिश करूंगा कि ज्यादातर साथियों का नाम मैं एड्रेस कर पाऊं। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो इनमें से जो अभी तक नियर अबाउट 100 पार्टिसिपेंट्स हैं, उनमें से काफी लोग NGO सेक्टर के हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उन सबका। तो अगर आप स्वयंसेवी संस्थाओं को समझते हैं और ग्रासरूट लेवल ऑर्गेनाइजेशंस का बैकग्राउंड अगर जानते हैं, तो आपको ये जरूर मैं याद दिलाना चाहूंगा कि अगर स्वयंसेवी संस्था के आप पार्ट हैं, तो आपको ये मेजर कुछ एरियाज हैं जहां पर क्षेत्र हैं जहां जिनसे आपको डे टू डे बेसिस पर गुजरना होता है और डील करना होता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो एक मेजर चैलेंज है जो वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन जिनको फेस करती हैं, वो है कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस डेवलपमेंट या फंड रेजिंग, जिसके लिए हर ऑर्गेनाइजेशन लाइक रोज कॉन्टेक्ट कर रही है, रोज उसके लिए फाइट कर रही है, एफर्ट्स कर रही है, और उनका प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा जो वो काम करना चाहते हैं उसके लिए उनको जो फंड और रिसोर्सेज चाहिए वो उनको मिल सके। सेकेंड एक मेजर एरिया है टेक्निकल स्ट्रेंथ की। ऑर्गेनाइजेशन तो
तो है, सेवा तो हम कर रहे हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो विदाउट फाइनेंशियल सपोर्ट भी एक मोटो के साथ, एक मिशन के साथ सेवा कर रही हैं, और बहुत अच्छा काम जमीन पे उनके थ्रू हुआ है। जो सोसाइटी में जो बहुत बड़े बड़े जो आज बदलाव हुए हैं उनमें उनका एक महत्वपूर्ण रोल है। तो ये सब तो है, लेकिन जब आज के समय में जो और चीजें चाहिए, जो टेक्निकल स्ट्रेंथ चाहिए, जो स्किल्ड मैन पावर चाहिए, वो कहीं ना कहीं उसकी कमी हो रही है, जिसकी वजह से ग्रोथ इंपैक्ट कर रही है, या एरिया में हम ज्यादा नहीं जा पा रहे हैं। और एक और एरिया है जहां पर, जैसे जो आज के दौर में सबसे इंपॉर्टेंट है और जो कोविड ने सबसे ज्यादा हमें सिखाया है कि अगर हमारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, लाइक हम स्ट्रेंथ हमारी है लेकिन हम चीजों को उसके इम्पैक्ट को हम विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं, या हम उसको डिस्प्ले नहीं कर पा रहे हैं, लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे इम्पैक्ट को लोग समझ नहीं पाएंगे, हमारे काम को लोग जान नहीं पाएंगे। और अगर हम मान लें कि झारखंड के कोई छोटे से इलाके में काम कर रहे हैं, तो दिल्ली तक हमारी आवाज कैसे पहुंचेगी, हम अपने सब्जेक्ट को कैसे हाईलाइट कर पाएंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है। और इसके लिए आज बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने धीरे धीरे, कोविड में मैंने देखा कि काफी ऑर्गेनाइजेशन जो डिजिटली साउंड नहीं थी, उन्होंने काफी अच्छा काम शुरू किया। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस की अब वेबसाइट बन गई है, उनके सोशल मीडिया पेजेस हैं, और वो लोग रेगुलर अपनी एक्टिविटीज को पोस्ट कर रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है कि ना सिर्फ उनके काम का प्रचार प्रसार हो रहा है, बल्कि उनके साथ नंबर ऑफ डोनर्स, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइज डोनर्स भी जोड़ रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे दिखती है कि वो भी एक है। और साथ में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है लीगल एंड फिनेंस मैनेजमेंट एज पर द गाइडलाइन, जो आज का टॉपिक भी है, जिसपे हमारे साथ राजेश बलानी जी, जिनका 20 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है डेवलपमेंट सेक्टर का, और सिर्फ वो एक्सपर्ट नहीं है बल्कि वो प्रैक्टिशनर भी हैं, साथ में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को वो डे टू डे बेसिस पर सपोर्ट भी दे रहे हैं। तो ऐसे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। तो मैं जो कह रहा था कि ग्रोथ, अगर ऑर्गेनाइजेशंस की, वॉलंटरी सेक्टर की अगर ग्रोथ बढ़ानी है, तो हमें लीगल कंप्लायंसेस का एक जो है बहुत वाइटल रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है, उसको हमें कहीं ना कहीं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेंथनिंग करनी पड़ेगी। और मैं एक और चीज मानता हूं कि अगर आपको आज के समय में ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी कैसे बनती है, अगर आप देखें, बहुत सारे साथी हमारे पूछते हैं कि हमारा एनजीओ है, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम बहुत सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी क्रेडिबिलिटी उतनी नहीं है जितनी कि दिल्ली या मुंबई या मेट्रो सिटीज में बैठे ऑर्गेनाइजेशंस की है। तो मैं उनसे कहता हूं कि आपको दो चीजें करनी पड़ेंगी, और ये बेसिक थंब रूल है, मतलब आप सब जानते हैं कि अगर हमें अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ानी है तो हमें दो ही चीजों से हम बढ़ा सकते हैं। एक तो अच्छा काम, गुड वर्क, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना उसके आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं मिल सकती। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रेट फिनेंस प्रैक्टिसेस, लाइक गुड वर्क एंड ग्रेट फिनेंस प्रैक्टिसेस। अगर ये दो चीजें हम फॉलो कर रहे हैं तो कोई भी हमारी क्रेडिबिलिटी को बढ़ने से रोक नहीं सकता है। और ये हर ऑर्गेनाइजेशंस को आज के समय में करना ही जरूरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत सारे नए रूल्स रेगुलेशंस आए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही हैं, नए अमेंडमेंट्स के कारण, चेंजेस के कारण हमें नए नए प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। मैं इन सब बातों को मानता हूं, समझता हूं, लेकिन एज अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन मैंने 20 साल डेवलपमेंट सेक्टर में अपने बिता चुका हूं, और मैं देख रहा हूं कि जिन ऑर्गेनाइजेशंस की प्रैक्टिसेस अच्छी है, जिनके पास स्किल्ड मैन पावर है, जो जिनकी इंटेंशन अच्छी है, उन ऑर्गेनाइजेशंस को नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स, नंबर ऑफ चेंजेस के बाद भी कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई है, और वो अच्छे से रन कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि फिनेंशियल प्रैक्टिसेस जो है, जो कहते हैं ना गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस जो हैं फिनांस के अंदर, गवर्नेंस का होना बहुत जरूरी है, और गुड गवर्नेंस का होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं, मेरे कुछ पॉइंट्स हैं मैं रख के, क्योंकि समय कम है, सिर्फ मुझे कॉन्टेक्स्ट सेटिंग करनी है, और आप सब राजेश जी को सुनना चाहते हैं, तो मैं जस्ट 1-2 मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगा कि अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस रखनी है, तो हमें अपने कुछ चीजों को जो डेली प्रैक्टिसेस हैं उनमें से कुछ पॉइंट्स हैं, ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स, इनको ध्यान में रखना होगा। जैसे पहला, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स आपका जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ पॉलिसीज, आपकी जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस की पॉलिसी हैं, चाहे वो ग्रीवेंस रिड्रेसल पॉलिसी हो, एचआर पॉलिसी हो, फिनेंस पॉलिसी हो, पॉस हो, चाइल्ड प्रोटेक्शन, अगर आप चाइल्ड पे काम कर रहे हैं तो चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी हो, एसेट हो, प्रोक्योरमेंट पॉलिसी हो, ये सब पॉलिसीज का होना बहुत जरूरी है। साथ में
आपके काम का मतलब पॉलिसी बनाना एक चीज और उसको इम्प्लीमेंट करना दूसरी चीज। तो एसओपी का होना जरूरी है कि आपके जितने भी टीम है उनको सबको आप हर काम की एसओपीज मालूम होना चाहिए। एसओपीज मींस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो क्लियर होना चाहिए। साथ में आपका जो अगर मैं कहूं तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रांसपेरेंसी जरूर होनी चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, बुक कीपिंग होनी चाहिए, हर चीज का रिकॉर्ड फाइल सब कुछ अपडेट होनी चाहिए और ये रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। और आपके जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं वो ट्रेंड होने चाहिए इनमें, उनको मालूम होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू द एसओपी, अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज, व्हाट मैकेनिज्म आई शुड फॉलो। सो ये अगर क्लियर है तो वो बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज एक और है जो हर काम के लिए जरूरी है, रेगुलरिटी एंड टाइमली कंप्लायंसेस। सो कंटिन्यूटी एंड टाइमली कंप्लायंसेस आपको ध्यान रखना है। और ट्रेंड एचआर अगर आपके यहाँ होगा और प्रोसेस, प्रोसीजर, सिस्टम एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग द फिनेंस, अगर ये सारी चीजें हम करते हैं तो मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन को न सिर्फ आप एक नए फेज में, एक नई ऊंचाइयों पे ले जा सकते हो, बल्कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको बहुत ही इजीली और बहुत ही आराम तरीके से आप अच्छे अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज भी कर सकते हैं। तो मैं आज के सब्जेक्ट जो आज का टॉपिक है, अंडरस्टैंडिंग लीगल कंप्लायंसेस फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मैं उसका ये विषय आपके सामने मैंने रखने की कोशिश की है। और इसके पीछे पर्पस यही है कि हमारे साथी जो आईएसआरएन के मेंबर ऑर्गेनाइजेशन हैं, अपार्ट फ्रॉम मेंबर ऑर्गेनाइजेशन जो इस एरिया में काम कर रहे हैं, वो आज के सेशन से जरूर उनको लाभ मिलेगा, प्रॉफिट एडवांटेजेस होगा और आने वाले समय में वो हमारे साथ जुड़कर और अच्छा काम कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं और आप ने मुझे सुना, समय दिया, इस सब के लिए आपको आभार भी प्रकट करता हूं। धन्यवाद। ओवर टू यू फरजाना। Thank you so much, Santosh ji, for this meaningful discussion and for setting the context just right for our next speaker. I would now like to introduce our esteemed subject matter expert for today. Let's welcome Mr. Rajesh Balani ji, a seasoned development finance professional having more than 10 years of experience in the development sector, having served more than 200 national and international NGOs across the globe. He is a chartered accountant by qualification and is a graduate in commerce from Delhi University. He has been involved in numerous financial reviews, investigations, accompaniments, pre-funding assessments, helping the sector in setting up financial systems and internal controls commensurate to the size and nature of respective organizations. He specializes in providing consultancy and legal opinions to various national and international NGOs, especially with respect to FCRA, income tax, GST, setting up of an entity, etc. He has also co-authored many training modules and resource materials for various partners in the areas of income tax, GST, and FCRA. Besides this, he has also been an expert faculty for various online courses conducted by CPA, services such as Certificate in Financial Management and Accountability, and a 21-day crash course in FCRA. With respect to trainings, he has facilitated various workshops for the partners of Oxfam, Geneva Global, PAX, Tata Institute of Social Sciences, Wealth Hunger Life, Kinder Not Hilfe, Birak, Emmanuel Hospital Associations, etc., focusing mainly on various topics, including financial management, legal compliances, and internal controls. He is currently the Senior Manager of Finance in an NGO named Janasahas, heading the finance, procurement, and admin vertical of the organization. Sir, I welcome you aboard. We are quite thrilled to hear from you and learn more about the topic from you today. Welcome aboard, sir. थैंक यू फरजाना जी, थैंक यू संतोष जी। संतोष जी, आपने मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा बोल दिया। मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, 20 साल का एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास। हाँ, 12-13 साल का ज़रूर है, लेकिन थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। तो हम स्टार्ट करते हैं कि इससे पहले हम लीगल कंप्लायंसेस के ऊपर जाएं। मैं मोस्टली हिंदी में बात करूंगा, अगर किसी को इंग्लिश में
चाहिए होगा तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट हम कर सकते हैं। तो इससे पहले हम लीगल कंप्लायंसेस पे जाएं कि नॉट फॉर प्रॉफिट के क्या लीगल कंप्लायंसेस होते हैं, हमें ये समझना जरूरी है कि लीगल कंप्लायंस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, कैसे बनता है और क्या क्या फॉर्म्स होते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट के। तो इंडिया में 3 तरह के नॉट फॉर प्रॉफिट्स, अगर आपको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाना है या आप सोच रहे हैं कि मैं अपना एक खुद का एनजीओ या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाऊं, तो हम 3 तरीके से उसको बना सकते हैं। एक होता है ट्रस्ट, जो कि इंडियन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, जो कि इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत एक स्टैम्प पेपर पे ट्रस्ट डीड बनती है, उसको रजिस्टर किया जाता है। और दूसरा होता है सोसाइटी, जो कि एक नेशनल एक्ट है, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, उसके तहत रजिस्टर होता है। अगर आप दिल्ली के अलावा और किसी स्टेट में जैसे कि राजस्थान में हैं या मध्य प्रदेश में है, तो वहाँ पे स्टेट स्पेसिफिक एक्ट भी बने हुए हैं सोसाइटी को रजिस्टर करने के लिए। तो वहाँ पे स्टेट स्पेसिफिक एक्ट्स बने हुए हैं, स्टेट स्पेसिफिक रजिस्ट्रार्स हैं, और वहाँ पे जाके सोसाइटी रजिस्टर हो सकती है। सोसाइटी रजिस्टर करने के लिए हमें मिनिमम 7 मेंबर की जरूरत होती है। और तीसरा तरीके का जो नॉट फॉर प्रॉफिट होता है उसे हम कहते हैं सेक्शन 8 कंपनी, जो कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, चैरिटेबल कंपनी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर रजिस्टर होता है। उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एज कंपेयर टू सोसाइटी या ट्रस्ट, लेकिन आगे के ज़माने में फ्यूचर को देखते हुए वो काफ़ी वेल रेगुलेटेड है, बिकॉज वो कंपनीज एक्ट के तहत उसको रजिस्टर किया जाता है, इसलिए उसको काफ़ी अच्छी तरह से रेगुलेट किया जा सकता है, काफ़ी अच्छी तरह से गवर्न किया जा सकता है। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि ट्रस्ट या सोसाइटी को गवर्न नहीं किया जा सकता। अगर आपके बायलॉ स्ट्रॉन्ग है, आपके गवर्नेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, तो ट्रस्ट और सोसाइटी को भी अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग किया गवर्न किया जा सकता है। तो ये 3 तरीके के रजिस्ट्रेशंस होते हैं अगर आप नॉट फॉर प्रॉफिट रजिस्टर या अपना नॉट फॉर प्रॉफिट खोलने का चेष्टा रखते हैं। इसके बाद अपन कंप्लायंसेस की बात करते हैं। तो कंप्लायंसेस भी 2 तरीके के होते हैं। आपने एफसीआर और इनकम टैक्स तो सुना ही होगा। तो वो एफसीआर इनकम टैक्स या पीएफ, उसे हम कहते हैं इनेबलिंग लॉज। लेकिन उससे पहले भी और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनकॉर्पोरेशन लॉज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम रजिस्टर करते हैं, जब हम अपना एनजीओ खोलते हैं, तो किसी एक्ट के तहत खोलते हैं। तो उस एक्ट में उसके क्या कंप्लायंसेस हैं, उस एनजीओ के क्या कंप्लायंसेस हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर आप सोसाइटी खोलते हैं, अगर आप सोसाइटी रजिस्टर करते हैं, तो आपको सोसाइटीज एक्ट 1860 फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें कि एक कंप्लायंस होता है कि आपको हर साल एक बोर्ड मेंबर्स का लिस्ट और ऑडिटेड फाइनेंशियल्स रजिस्ट्रार को सबमिट करने होते हैं। वैसे ही अगर आप स्टेट स्पेसिफिक रजिस्टर्ड हैं, स्टेट स्पेसिफिक एक्ट से रजिस्टर्ड हैं, तो उस स्टेट स्पेसिफिक राजस्थान का अलग से एक्ट है, एमपी का अलग से एक्ट है, कर्नाटका का अलग से एक्ट है। तो उस एक्ट के तहत जो भी कंप्लायंसेस हैं वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। उसके हिसाब से फॉर एग्जांपल सेक्शन 8 कंपनी की अगर हम बात करें, तो सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट में बहुत सारे ऐसे कंप्लायंसेस हैं। जैसे आरओसी की एनुअल रिटर्न फाइलिंग होती है। आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, वहां पे एनुअल रिटर्न्स फाइल होती हैं। आईटीआर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आईटीआर तो अलग ही चीज है, लेकिन उसके अलावा भी हमें आरओसी का फाइलिंग करना होता है, एनुअल रिटर्न होती है। उसके अलावा दूसरे भी फॉर्म्स होते हैं। अगर आप डायरेक्टर चेंज करते हैं तो उसका फॉर्म होता है, ऑडिटर चेंज करते हैं तो उसका फॉर्म होता है। तो वो सारे फॉर्म्स, वो सारे कंप्लायंसेस आपको फाइल करने होते हैं। दोज आर इनकॉर्पोरेशन लॉज, जो कि आपके इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड होते हैं। अगर आप ट्रस्ट रजिस्टर करते हैं तो ट्रस्ट का एज सच कोई कंप्लायंस नहीं है, लेकिन अगर आप या महाराष्ट्र या गुजरात में रजिस्टर्ड हैं, तो वहां पे महाराष्ट्र या गुजरात में हर ट्रस्ट इज गवर्न बाय चैरिटी कमिश्नर। तो चैरिटी कमिश्नर हमारे बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 को फॉलो करता है, वहां के और कंप्लायंसेस हैं। तो उस तरीके के कंप्लायंसेस भी आपको फॉलो करने हैं। एक मैं आपको केस बताऊंगा, एक
तमिलनाडु की ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका FCRA इनकम टैक्स बहुत बढ़िया चला, लेकिन सिंस उसने सोसाइटी का रिटर्न नहीं भरा था तो उसका सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन ही लैप्स कर लिया गया। तो सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन लैप्स हो गया तो एंटिटी ही नहीं रही, तो एंटिटी उनको बंद करनी पड़ी। तो FCRA इनकम टैक्स तो लॉज हैं ही जिसके बारे में अपन बात करेंगे, लेकिन ये जो कंप्लायंसेस हैं, जो एनुअल फाइलिंग ऑफ कंप्लायंसेस हैं सेक्शन 8 के अंदर या सोसाइटी के अंदर, ये भी आपको अपने स्टेट के हिसाब से ध्यान रखनी है और इनको फॉलो करना है। चलिए अब हम बात करते हैं इनकॉर्पोरेशन लॉज। तो में इतने कंप्लायंसेस नहीं हैं जितने हमारे इनेबलिंग लॉज में हैं, जो कि इनेबलिंग लॉज इस सेशन में हम 2 इनेबलिंग लॉज के बारे में बात करेंगे, जो कि होगा FCRA और इनकम टैक्स। तो FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट इज वो एक ऐसा लॉ है जो कि अमेंडमेंट भी करता है लेकिन जरूरी भी है, और इसीलिए जरूरी है तो अपने को इसको फॉलो भी करना है। आप सब लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे होंगे। तो FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट इज एन एक्ट जो आपके बाहर से ग्रांट्स या कॉन्ट्रीब्यूशंस आते हैं उसको गवर्न करने के लिए बना है। मैं चाहूंगा कि जो भी आपके सवाल हैं वो आई थिंक हम Q&A सेशन में लेंगे। एक बार मैं अपनी प्रेजेंटेशन पूरी कर लूं, जो भी मुझे चीजें बोलनी है वो मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद अपन एक Q&A सेशन रखेंगे जिसमें आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो FCRA एक्ट जो कि एक एक्ट है जिसको कि हमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत जाना जाता है। अगर हम कोई बाहर से ग्रांट्स या कंट्रीब्यूशन लेते हैं तो ये जो एक्ट है ये उन ग्रांट्स कंट्रीब्यूशंस को गवर्न करता है। क्या हम उसका ठीक से यूटिलाइजेशन करते हैं, क्या हम ठीक से फाइलिंग करते हैं, क्या हम उसकी रिपोर्ट्स जनरेट करके MHA में फाइल करते हैं, वो सारा चीज इस एक्ट के तहत जाना जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे क्या क्या कंप्लायंसेस हैं FCRA के अंदर जो हमें करने चाहिए और उसकी क्या इंट्रिसिटीज हैं, क्या निटिग्रिटीज हैं, उसके क्या कंप्लायंसेस हैं, उसकी क्या फाइलिंग्स हैं, कंप्लायंसेस नहीं करेंगे तो क्या होगा, कंप्लायंसेस करेंगे तो क्या होगा। तो ये बात स्टैट्यूटरी सबमिशंस अंडर FCRA। तो सबसे पहले तो आता है हमारी रिटर्न जो कि एनुअल रिटर्न है, दूसरा आता है एनुअल इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन, तीसरा चेंज इन नेम एड्रेस, चेंज ऑफ यूटिलाइजेशन बैंक अकाउंट, चेंज इन बोर्ड मेंबर्स। तो सबसे पहले हम रिटर्न की बात करते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कंप्लायंस है FCRA का। आपने जो भी पैसा रिसीव किया है या जो भी पैसा यूटिलाइज किया है उसको एक एनुअल रिटर्न में फाइल करना होता है। उसका फॉर्म होता है फॉर्म FC4 जो कि कंप्लीटली ऑनलाइन है। आपको कोई भी हार्ड कॉपी कहीं पे भी नहीं भेजनी है। अब आप सवाल ये पूछते हैं कि FC4 कहाँ भरना है, कैसे भरना है। तो FC4 एक पूरा कंप्लीटली ऑनलाइन फॉर्म है जिसको अपन FCRA ऑनलाइन की वेबसाइट पे भरते हैं, fcraonline.nic.in। उसमें आपको अपने FCRA के जहाँ कहाँ से पैसा आया, डोनर्स की डिटेल, आपने कहाँ खर्च किया, उसका डिटेल आपको भरना होता है। कहाँ कहाँ हम खर्च कर सकते हैं, हम बेसिकली 3 जगह खर्च कर सकते हैं, प्रोग्राम, एडमिन और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर बड़ा क्लियर है कि अगर आप कोई भी फॉरेन फंड से कोई एसेट खरीदते हैं या कोई फिक्स एसेट्स खरीदते हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। एडमिन एक्सपेंडिचर रूल 5 ऑफ FCRA बड़ा क्लियर कहता है कि जो खर्चा आपके प्रोग्राम से रिलेटेड नहीं है, लाइक फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट का सैलरी हो गया या ऑडिटर का फीस हो गया या कोई रिपोर्ट राइटिंग हो गया, जो हमारे प्रोग्राम से डायरेक्टली लिंक नहीं है, उसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर मानते हैं। और तीसरे तरीके का खर्चा आता है उसे हम कहते हैं
उसे हम कहते हैं प्रोग्राम एक्सपेंडिचर। तो प्रोग्राम एक्सपेंडिचर इज एनी एक्सपेंडिचर विच इज डायरेक्टली लिंक्ड टू दी प्रोग्राम्स। तो वो प्रोग्राम का खर्चा प्रोग्राम के अंदर आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव, और तीसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन तीन बेसिकली हेड्स में आपको डिवाइड करके FC4 भरना होगा। इसके साथ साथ आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का स्कैन कॉपी भी अपलोड करना है, जिसके अंदर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होना चाहिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर होना चाहिए, बैलेंस शीट होना चाहिए, और एक सर्टिफिकेट बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसका फॉर्मेट FCRA की साइट पे भी दे रखा है। और पांचवा चीज जो कि डिक्लेरेशन बाय चीफ फंक्शनरी की हमने सारे कंप्लायंसेस, चीफ फंक्शनरी कोई भी हो सकता है, CEO हो सकता है, आपका कोई भी बोर्ड मेंबर सेक्रेटरी हो सकता है, लेकिन बहुत जरूरी है कि ये चीफ फंक्शनरी का डेफिनेशन कहीं पे FCRA में नहीं है। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप इसको डिफाइन करें अपनी संस्था में थ्रू अ बोर्ड रेजोल्यूशन। बोर्ड डिसाइड कर सकता है कि फॉर FCRA पर्पसेस चीफ फंक्शनरी कौन है। ये कोई CEO हो सकता है, कोई फाइनेंस मैनेजर हो सकता है, कोई अकाउंटेंट हो सकता है, लेकिन उसका जो अथॉरिटी है वो बोर्ड की तरफ से आना चाहिए कि ये पर्सन FCRA पर्पसेस के लिए चीफ फंक्शनरी रहेंगे। तो वो एक डिक्लेरेशन चीफ फंक्शनरी देते हैं कि हमने जो भी FCRA कंप्लायंसेस है वो सारे कंप्लीट किए हैं अलॉन्ग विद द रिटर्न। जो हमारी 21-22 की रिटर्न है उसका लास्ट डेट FC4 का 31 दिसंबर 2022 है। अगर अब सवाल ये उठता है कि अगर हमने 31 दिसंबर को फाइल नहीं किया तो क्या होगा? अच्छा सवाल है। उसके लिए अपन इस स्लाइड पे आते हैं। अगर हमने फाइलिंग डिले किया तो हम उसका एक पेनल्टी होता है, उसका वो एक ऑफेंस है, FCRA लॉज के अंदर एक ऑफेंस है। तो ऑफेंस पनिशेबल है, लेकिन जो ऑफेंस है उसकी वजह से ये नहीं कि आपका FCRA कैंसिल होगा। हाँ, अगर आपने 2 साल या 3 साल तक रिटर्न फाइल नहीं करी है तो सरकार समझती है कि आपने ठीक से अपना कंप्लायंसेस कंप्लीट नहीं किए हैं, तो उससे अगर आप 3 साल लगातार फाइलिंग नहीं करते हैं तो आपका FCRA कैंसिल हो सकता है। हालांकि अगर आपने मान लीजिए 31 दिसंबर तक 1 साल नहीं कर पाए, आपने बाद में किया, तो उसका एक फाइन है। फाइन क्या है? 5% ऑफ द FC रिसीव्ड और 1 लाख विच एवर इज हायर। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए अपने संस्था में FC फंड लिया, तो 10 लाख का मान लीजिए 5% 50,000 होता है, लेकिन उसका 1 लाख रुपए जो है 1 लाख विच एवर इज हायर, तो 1 लाख रुपए आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा अगर आपने 31 दिसंबर तक अपनी रिटर्न फाइल FC4 नहीं किया। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका इम्प्लीकेशन बहुत हैवी है। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपका 1 लाख रुपए कम से कम पेनल्टी में जा सकता है। तो इसलिए इस डेट को जरूर ध्यान रखिए। और ये बहुत बार होता है, मैं करीबन 5 साल से देख रहा हूँ कि लास्ट के डेज में ये इनकी वेबसाइट, FCRA की वेबसाइट शायद नहीं चलती है, शायद चलती है। इसलिए इट इज एडवाइजेबल कि आप वेल विद इन टाइम इसको फाइल करें। अगर 1 दिन का भी डिले होता है तो ये पेनल्टी लग जाती है। मैं कहूँगा 1 दिन का नहीं, 1 मिनट का भी, अगर 12:01 भी हो गया 31 दिसंबर की रात को, तो भी ये पेनल्टी लग जाती है। अपने आप पेनल्टी कैलकुलेट होती है फाइलिंग, और अगर आप पेनल्टी नहीं भरेंगे तो आप फाइलिंग नहीं कर पाएंगे। तो जो सॉफ्टवेयर जनरेटेड पेनल्टी है, ये आप ऑनलाइन जाएंगे, आप रिटर्न फाइल करने की कोशिश करेंगे 31 दिसंबर का, पहले आपको बोलेगा वो पेनल्टी भरिए, उसके बाद आपको ये फाइलिंग करने देगा। तो आपका सवाल ये होगा कि मान लीजिए हमारा कोई पैसा आया ही नहीं पूरे साल, तो क्या तब भी हमें रिटर्न भरनी है? मेरा जवाब होगा हाँ। अगर हमारी नील रिटर्न भी है, अगर हमारे नील भी है तो हमें नील रिटर्न फाइल करनी है। अगर रिसीट भी नील है, यूटिलाइजेशन भी नील है, तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका रिसीट नील है या यूटिलाइजेशन पिछले
फंड से कुछ हुआ है तो आपको सारा कुछ फाइल करना है, लेकिन रिटर्न जरूर फाइल करनी है। नील रिटर्न, पैसा आए या नहीं आए, आपको नील रिटर्न जरूर फाइल करनी है। दूसरा कंप्लायंस जो यहाँ पे आता है वो है एनुअल इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन। सरकार कहती है कि जो भी आप एफसीआरए में फाइलिंग कर रहे हैं या आपके रिसीट एंड पेमेंट है या आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, वो आपको पब्लिक डोमेन में सबके लिए रखना है कि आप उस पैसे को कैसे खर्च कर रहे हैं, कैसे कहाँ से पैसा रिसीव हो रहा है। तो सवाल उठता है कि हमें क्या डिटेल्स भरनी है, कब भरनी है, कहाँ भरनी है। तो डिटेल्स ऐसी हैं कि डिटेल्स ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन आपको बेसिकली आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एफसीआरए की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती हैं, बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसीट एंड पेमेंट, वो अपलोड करना होता है। कब तक अपलोड करना होता है? 31 दिसंबर तक। 31 दिसंबर तक। और कहाँ अपलोड करना होता है? या फिर आपकी खुद की वेबसाइट है, खुद की संस्था की वेबसाइट है, वहां अपलोड कर सकते हैं, या फिर कोई गैजेटेड न्यूज़पेपर है, वहां पे आप उसको पब्लिश करवा सकते हैं। नेशनल गैजेटेड न्यूज़पेपर है, वहां पे आप उसको पब्लिश करा सकते हैं। अब आपका सवाल होगा कि अगर हमारे पास वेबसाइट नहीं है तो हम क्या करेंगे? तो वेबसाइट नहीं है तो आपको गैजेटेड न्यूज़पेपर में इसको पब्लिश कराना होगा। इसीलिए मेरा सुझाव आपसे ये रहेगा कि अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो एटलीस्ट ये कंप्लायंस के लिए आप अपना वेबसाइट खोल सकते हैं। वेबसाइट खोलने में ज़्यादा खर्च नहीं आता है, आजकल काफ़ी कम रेट्स में वेबसाइट खुल जाती हैं, और आप अपनी एक्टिविटीज़ भी उसके साथ शोकेस कर सकते हैं। क्योंकि आप जब भी किसी डोनर को प्रपोजल भेजते हैं तो जैसे ही वो प्रपोजल देखता है वो सबसे पहले आपका वेबसाइट खोलने की कोशिश करता है कि आपकी वेबसाइट है या नहीं है, आप क्या काम करते हो। तो इसीलिए आजकल के फास्ट फॉरवर्ड ज़माने में हमारा खुद का वेबसाइट होना बहुत ज़रूरी है। वेबसाइट में अपनी एक्टिविटीज़ डालिए, अपना उद्देश्य क्या है, विजन मिशन, वो सब डालिए और इस कंप्लायंस को भी पूरा करिए। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे फॉर एग्जांपल आप जर्मनी में किसी को प्रपोजल भेजते हैं तो जर्मनी वाला पहले प्रपोजल तो देखता है, लेकिन प्रपोजल देखने से पहले आपकी वेबसाइट चेक करेगा कि आप काम क्या करते हो, क्या आप इसमें सही में काम करते हो, क्या काम करते हो, कैसे काम करते हो, कितनी टीम मेंबर्स हैं, कि कौन बोर्ड मेंबर्स हैं। वो सारा चीज़ आपको जितना हो सके डालना चाहिए अपनी एक्टिविटीज करने में और इस कंप्लायंस को पूरा करने। अब आता है कंप्लायंस विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन नेम एंड एड्रेस। अगर आप अपना नाम या एड्रेस चेंज करते हैं तो ऑफ कोर्स एफसीआरए से पहले आपको अपने इनकॉर्पोरेशन लॉ या इनकॉर्पोरेशन जो रजिस्ट्रार है वहां पे जाके चेंज कराना है। तो लोकल रजिस्ट्रार हो गया या रजिस्ट्रेशन अंडर कंपनीज एक्ट, अगर एमसीए में चेंज कराना है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जाके चेंज कराना होता है। वहां से अगर आपने चेंज कराया उसके बाद से 45 डेज के अंदर अंदर आपको एफसीआरए में भी इंटीमेट करना होता है। एड्रेस जो है वो आप अगर एक स्टेट में काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप एमपी में काम कर रहे हैं या एमपी में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, तो आप एमपी से बाहर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जो आपको एफसीआरए नंबर मिलता है वो आपके स्टेट के बेसिस पे मिलता है। तो अगर आप स्टेट चेंज करेंगे अपना, अगर आप एमपी से बाहर रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो आपका एफसीआरए लैप्स हो जाएगा, आपका एफसीआरए रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो जाएगा, आपको नया एफसीआरए लेना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आपको एड्रेस चेंज करना है तो प्रेफरेबली विद इन द सिटी आपको करना चाहिए। ओपनिंग ऑफ यूटिलाइजेशन अकाउंट्स, एफसीआरए में ये सुविधा दे रखी है कि आपका एक मेन बैंक अकाउंट होगा जो कि एसबीआई के अंदर दिल्ली ब्रांच में होगा, संसद मार्ग ब्रांच में होगा, और उसके अलावा आप जितने भी यूटिलाइजेशन अकाउंट खोलना चाहें वो आप खोल सकते हैं। बस शर्त ये है कि जो भी आप यूटिलाइजेशन अकाउंट खोलते हैं उसका अप्रूवल आ जाना चाहिए एमएचए की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से।
उसके लिए आपको फॉर्म FC6D भरना पड़ता है, जो कि 45 डेज के अंदर विद इन द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द अकाउंट आपको भरना होता है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है, सेविंग्स अकाउंट भी डाल सकते हैं, करंट अकाउंट भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब तक उसका इंटीमेशन का अप्रूवल नहीं आता है हमें उसको यूज नहीं करना चाहिए। जो भी ओपनिंग बैलेंस अकाउंट खोलने के लिए बैलेंस चाहिए होता है वो हम डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा हमें और कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करनी चाहिए जब तक अप्रूवल नहीं आता है। बोर्ड मेंबर्स चेंज करना, अगेन अगर चेंज करते हैं तो आपको 45 डेज के अंदर अंदर फॉर्म FC6E में इंटीमेट करना होता है। उसके साथ साथ एक एफिडेविट भी लगाना होता है जिसमें ये बोलते हैं कि बोर्ड मेंबर will be solely responsible for FCRA compliances in the organization and तो इसीलिए ये एक एफिडेविट लगाना होता है जब भी आप किसी नए बोर्ड मेंबर को इंडक्ट करते हैं या कोई रिप्लेस होता है या कोई रिप्लेस होता है या कहीं एडिशन होता है, तो आपको रेजोल्यूशन फ्रॉम गवर्निंग बॉडी, जो उसकी गवर्निंग बॉडी मिनट्स हैं, और उसका एफिडेविट नए मेंबर का आपको लगाना होता है। वो 45 डेज के अंदर आपको इंटीमेट करना होता है। FCRA रिन्यूअल, 5 साल तक ये FCRA रजिस्ट्रेशन वैलिड रहता है। मान लीजिए अगर आपने 2018 में रजिस्टर कराया है तो 2023 तक आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड होगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका मान लीजिए सितंबर 2023 में एक्सपायर हो रहा है तो 6 महीने उससे पहले आपको अप्लाई करना है। अगर आपका सितंबर 2023 को एक्सपायर हो रहा है तो आपको मार्च 2023 तक FC3C फाइल कर देना चाहिए, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होता है, ऑनलाइन फाइल होता है FCRA ऑनलाइन की वेबसाइट पे। अगेन इसके साथ साथ आपको हर बोर्ड मेंबर का एफिडेविट भी लगाना होता है। जिसका रिन्यूअल अभी तक हो गया है बहुत अच्छी बात है, जिसका रिन्यूअल नहीं हुआ है, एक्सटेंड हो गया है, घबराइएगा नहीं। 30 सितंबर तक आपका रिन्यूअल, आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड है। और मेरी आशा है, मेरे को जो लग रहा है वो ये है कि या फिर आपको रिन्यूअल मिल जाएगा 30 सितंबर तक या फिर वो और एक्सटेंड हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका रिन्यूअल एक्सपायर हो जाएगा और वहाँ पे एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, तो घबराइएगा नहीं। अभी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि सरकार सारी FCRA रजिस्ट्रेशन बंद कर रही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपका FCRA डिनाई हो गया है तो आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। FCRA का रिवीजन एक फॉर्म आता है, रिवीजन और एप्लीकेशन फॉर्म आता है, वो आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी अगर आपका FCRA डिनाई हो जाए। लेकिन अगर डिनाई भी नहीं हुआ है, एक्सेप्ट भी नहीं हुआ है, घबराइएगा नहीं, ये हो सकता है कि और 3 महीने ये एक्सटेंड हो जाए। चलिए FCRA के ऊपर अगर हम FCRA तो खत्म कर दिया है, अब अपन इनकम टैक्स के ऊपर बात कर सकते हैं। तो इनकम टैक्स में सबसे पहले तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 12A और 80G का रिन्यूअल। 2 साल पहले जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये एक प्रोविज़न निकाला था कि जिसके भी 12A एग्जिस्टिंग और 80G रजिस्ट्रेशन एग्जिस्टिंग है उनको रिन्यूअल करना पड़ेगा। इसका रीज़न बेसिकली ये था कि पहले जो 12A या 80G रजिस्ट्रेशन मिलते थे वो स्टेट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से मिल जाते थे, उसका कोई भी ऑनलाइन डेटा नहीं था इनकम टैक्स के पास। तो उस एक नेशनल रजिस्टर बनाने के लिए कि किस सोसाइटी या किस एनजीओ के पास 12A है, 80G है, वो रजिस्टर बनाने के लिए हमने इसको फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको बोला है कि आप रीवैलिडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन, अगर आपका रीवैलिडेशन हुआ है तो आप रीवैलिडेशन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन अंडर 12A क्यों जरूरी है? क्योंकि registration under section 12A is necessary to claim exemption under income tax। तो इसका मतलब ये है
कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का 12A नहीं है तो उसको कोई भी इनकम टैक्स का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, उसको एक नॉर्मल बिजनेस एंटिटी की तरह माना जाएगा। तो एटीजी का क्या महत्व है? एटीजी का ये महत्व है कि अगर आपके पास एटीजी रजिस्ट्रेशन है तो आपके डोनर को टैक्स बेनिफिट उसका मिल सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमने रिन्यूअल कराया, हमने रिन्यूअल नहीं कराया तो हम क्या करें? रिन्यूअल सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर्म 10A आता है, उसका रिन्यूअल फॉर्म है, वो आपको करना चाहिए था। अगर आपने किया है तो उसका अप्रूवल भी आ गया होगा अभी तक। अगर उसका नहीं आपने किया है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी लास्ट डेट 31 मार्च 22 थी। 31 मार्च 22 थी। उसके बाद कोई भी रिन्यूअल के फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो अगर आपका एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है, आपने रिन्यूअल के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो आपका 31 मार्च को वो 12A रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो चुका है। उस केस में हमें ये करना पड़ेगा कि हमें फ्रेश 12A रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो फ्रेश 12A रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने के लिए अगेन फॉर्म 10A है। फ्रेश एटीजी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी सेम फॉर्म है, फॉर्म 10A, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होता है, ऑनलाइन इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके फाइल होता है। तो वो आप जाके फाइल कर सकते हैं और बड़ा ही सिंपल फॉर्म है। बोर्ड मेंबर्स की डिटेल मांगते हैं, लास्ट 3 ईयर्स के फाइनेंशियल्स मांगते हैं। अगर आपने रिन्यूअल करना भूल गए तो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आता है, उसके बाद रेगुलर रजिस्ट्रेशन आता है, जो कि 5 साल तक वैलिड होता है। अब हम आते हैं कुछ ऑपरेशनल इश्यूज जो कंप्लायंसेस इनकम टैक्स के अंदर होते हैं। सबसे पहला तो हमारा ऑडिट एंड रिटर्न फाइलिंग होता है। अगर आपका 2.5 लाख से ऊपर इनकम है तो आपको ऑडिट करवाना मैंडेटरी है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से। और इसकी आईटीआर की फाइलिंग डेट 31 अक्टूबर रहती है। अगर आप 21-22 की बात करेंगे तो 31 अक्टूबर 2022 डेट है आईटीआर फाइलिंग की। आईटीआर 7 में फाइल होता है। इसके अलावा एक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जाती है जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइल करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म 10B में। और फॉर्म 10B की लास्ट डेट है 30 सितंबर। और फॉर्म 10B ऐसा फॉर्म है कि अगर आपने अपनी बैलेंस शीट फाइल नहीं की है, अगर आपने अपना ऑडिट नहीं करवाया है, तो ये टैक्स ऑडिट रिपोर्ट नहीं भरी जा सकती। तो इसीलिए अगर अभी तक आपने ये ऑडिट नहीं करवाया है या आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल नहीं किए 21-22 फाइनेंशियल ईयर के, तो आप जल्दी से इस बैलेंस शीट को फाइनल करके बैलेंस शीट साइन कराइए और फॉर्म 10B अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या अपने ऑडिटर को बोलिए कि ये फॉर्म 10B 30 सितंबर से पहले इसको फाइल करना है। अगर 21-22 की अभी तक नहीं हुई है तो आपको ये 30 सितंबर से पहले करना है। अब सवाल ये उठता है, हमने 31 अक्टूबर तक नहीं आईटीआर फाइल किया या 30 सितंबर तक 10B नहीं फाइल किया तो क्या होगा? बहुत ही सिंपल है। अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं किया तो जो भी आपकी इनकम है, मान लीजिए 10 लाख रुपए आपकी इनकम है, आपके एनजीओ की इनकम है, तो 10 लाख की 10 लाख सारी की सारी टैक्सेबल मानी जाएगी। इसका मतलब ये है कि 10 लाख के ऊपर आपको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे अगर आपने 10B फाइल नहीं किया या आपने आईटीआर 7 31 अक्टूबर तक फाइल नहीं किया। जो भी आपका खर्चा है वो सारा डिसअलाउ हो जाएगा, ऑटोमेटिक है, बड़ा ही इजी प्रोविजन है, वो ऑटोमेटिकली डिसअलाउ हो जाता है और अपने आप डिमांड आपके पास इनकम टैक्स की डिमांड आ जाएगी अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट अलॉन्ग विथ पेनल्टी। दूसरा आता है, हम क्या कैश पेमेंट कर सकते हैं, कैश रिसीट्स कर सकते हैं? हाँ, कर तो सकते हैं, लेकिन उसकी भी लिमिट्स हैं। आजकल के डिजिटल ज़माने में जहाँ पे शायद टैक्सी या कैब या ऑटो वाला भी गूगल पे से पेमेंट ले लेता है, तो आपको कैश पेमेंट करने की ज़रूरत ही क्या है? इसीलिए सरकार ने ये कैश पेमेंट की लिमिट 10,000
फॉर सिंगल डे टू अ सिंगल वेंडर बना रखी है। अगर आपका कोई भी खर्चा मान लीजिए 10,000 से ऊपर हो रहा है जिसको कि कैश पेमेंट करना है, तो वो आप उसको एक दिन में कैश पेमेंट नहीं कर सकते। लॉ कहता है कि आपको उसको एक दिन से ज़्यादा के अंदर पार्ट पार्ट में पेमेंट्स करनी होगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए कोई 15,000 का खर्चा है जिसको कि कैश पेमेंट करना है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप वेंडर को कन्विंस करिए कि आप उसके बैंक में ट्रांसफर करिए। आजकल यूपीआई और गूगल पे, फोन पे बहुत ही आसान हो गया है पेमेंट करना। तो सरकार का उद्देश्य, सरकार का इंटेंशन यही है कि आप जितना डिजिटल से डिजिटल पेमेंट्स करें उतना ज़्यादा बेहतर है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश ये पेमेंट नहीं हो पा रहा है कैश पेमेंट, तो आपको ये जरूर करना होगा कि 15,000 की पेमेंट है तो 7,500 एक दिन, 7,500 दूसरा दिन पेमेंट करके उस हिसाब से आप उनसे रिसीट्स ले सकते हैं। क्या हम कैश डोनेशन दे सकते हैं? हाँ, कैश डोनेशन तो ले सकते हैं, लेकिन एक सिंगल डोनर से सिर्फ 2,000 रुपए तक ले सकते हैं अगर डोनर को एटीजी की रिसीट देनी है। तो अगर एटीजी की रिसीट नहीं देनी है तो आप कितना भी कैश डोनेशन दे सकते हो, लेकिन मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप जितना कैश डोनेशन कम रखें उतना बेहतर है। आप डायरेक्ट बैंकिंग चैनल से पेमेंट कीजिए, यूपीआई से पेमेंट कीजिए, गूगल पे से पेमेंट कीजिए, उसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन अगर आप कैश डोनेशन देते हैं तो 2,000 से ऊपर आप नहीं ले पाएंगे सिंगल डोनर से। टीडीएस कुछ ऐसे खर्चे हैं जिसके ऊपर टीडीएस कटना चाहिए। अगर टीडीएस नहीं काटा तो उस खर्चों पे टैक्स लग जाएगा। तो इसीलिए ये चीज जरूर ध्यान रखिए। मैं ये बताऊंगा आपको कि किस किन खर्चों पे टीडीएस लगेगा, किन खर्चों पे नहीं लगेगा। पेमेंट टू स्पेसिफाइड पर्सन्स, अगर आप किसी ट्रस्टी या किसी सीईओ या किसी बोर्ड मेंबर को पेमेंट कर रहे हैं एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर या एज अ सीईओ, तो वो आपको जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं उसको आपको डिस्क्लोज करना होता है फॉर्म 10B में। तो ये जब फॉर्म 10B फाइल होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइल करेंगे, तो आप ये जरूर ध्यान रखिए कि अगर आपके किसी बोर्ड मेंबर को पेमेंट हो रहा है ऑन बिहाफ ऑफ सैलरी, रेमुनरेशन, कंसल्टेंसी, ऑनरेरियम, ऐसा कोई भी पेमेंट हो रहा है तो आप उसको 10B में डिस्क्लोज करिए। ट्रैवल अगर एक्सपेंडिचर रीइंबर्स करते हैं वो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई सैलरी रेमुनरेशन जा रहा है, ऑनरेरियम जा रहा है, कंसल्टेंसी जा रहा है, तो वो आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत है। टीडीएस में ये कुछ मैंने सैंपल बेसिस पे रखा है जो कि एनजीओ में ज़्यादातर एप्लीकेबल होता है। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स, अगर 30,000 से ज़्यादा सिंगल बिल है तो आपको टीडीएस काटना है। इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1%, अदर देन कोई कंपनी है तो 2%। अगर 1 लाख से ऊपर पूरे साल में बिल जा रहे हैं तो वो 2% या 1% बेस्ड ऑन द रेसिपिएंट लगता है। उसी हिसाब से प्रोफेशनल फीस की बात करें, जैसे अगर मान लीजिए आप किसी ऑडिटर को पेमेंट करते हैं, उसको 40,000 पेमेंट करते हैं, तो वो 30,000 से ऊपर उसका लिमिट होता है, उसको आपको 10% टीडीएस काटना होता है। ये लिमिट राजेश जी, जी। आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा सा और लाउडली अगर आप बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। काफी लोग लिख रहे हैं कि वॉइस इज नॉट क्लियर। ठीक, अब आ रही है ठीक से? हाँ, पहले से बेटर है। राइट। तो ये सारी पेमेंट्स हैं जिसके ऊपर टीडीएस कटता है। और ये सारे रेट्स, अगर मान लीजिए रेंट आप दे रहे हैं 2,40,000 से पूरे साल में रेंट है, तो आपको 10% टीडीएस काटना पड़ेगा। टीडीएस की रिटर्न होती है जो कि हर क्वार्टर में जाती है, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर, जनवरी टू मार्च। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है 31 जुलाई तक, अप्रैल टू जून का, तो हर दिन का 200 रुपये का पेनल्टी है। तो इसलिए इन डेट्स को जरूर ध्यान रखिए। अपनी जो टीडीएस रिटर्न है, अगर आपने किसी का टीडीएस डिडक्ट किया है, डिपॉजिट किया है, तो उसकी रिटर्न फाइल करना बिल्कुल मत भूलिए। हो सकता है कि आपका ऑडिटर फाइल करता हो, लेकिन जिम्मेदारी आपकी है। हो सकता है ऑडिटर ने जिम्मेदारी लिया हो, लेकिन अल्टीमेट जिम्मेदारी, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही का ही है, क्योंकि जब डिमांड आएगी तो वो सीए नहीं भरेगा, वो आप भरेंगे।
उसी हिसाब से जिसका TDS आप काटते हैं उसको आप TDS सर्टिफिकेट इशू करना होता है। सैलरी का 15 जून तक पे करना, सर्टिफिकेट इशू करना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब आप सर्टिफिकेट इशू करते हैं तो आप उससे एक रिसीविंग ले लें, सो दैट हमारा ये कंप्लायंस पूरा हो जाए। तो इसी के साथ मैं अपना जो प्रेजेंटेशन है वो ख़त्म करता हूँ। इसके अलावा आई थिंक कुछ 2-3 सवाल आए थे CSR से रिलेटेड, तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि CSR लॉ एक बहुत ही न्यूली डेवलप्ड लॉ है, जिसके अंदर आप फंड्स, कॉर्पोरेट्स को फंड्स एक्सेस कर सकते हैं, कॉर्पोरेट फंड्स एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में आपको बस मैं बताना चाहूँगा। अगर आपको CSR फंड लेना है तो उसकी सबसे पहले तो आप रजिस्टर्ड ट्रस्ट या सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी होने चाहिए। दूसरा, आपके पास वैलिड 12A या 80G या 1023C सर्टिफिकेट होना चाहिए। तीसरा, आपके पास पिछले 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए लाइवलीहुड प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो लाइवलीहुड में काम करने के लिए आपके पास 3 साल का सिमिलर एक्सपीरियंस होना चाहिए। चौथा, एक फॉर्म आता है फॉर्म CSR 1, जो कि MCA की वेबसाइट पे जाके आपको फाइल करना होता है। बड़ा ही सिंपल फॉर्म है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट फॉर्म नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स भरनी होती हैं। वो CSR 1 रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको MCA की साइट पे जाके रजिस्टर करना होता है, और वो CSR 1 जब तक रजिस्टर नहीं करेंगे तब तक आपको CSR फंड्स का एक्सेस नहीं मिल पाएगा। तो ये 4 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहते हैं CSR फंड्स को एक्सेस करने के लिए। तो अब आई थिंक मेरा प्रेजेंटेशन खत्म होता है। आई थिंक वी कैन नाउ ओपन टू Q&A सेशन। यस, थैंक यू राजेश जी। वैसे तो आपने अपने सेशन में ही, सत्र में ही काफी सवाल कवर कर लिए हैं, और लास्ट में आपने स्पेशली जो CSR रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो भी आपने एड्रेस किए। बट एज पर द प्रोग्राम शेड्यूल, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन आंसर सेशन है और काफी हमारे पास सवाल आए भी हैं, मैं कुछ क्योंकि ये प्रोग्राम इंटरेक्टिव है तो चैट बॉक्स में तो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो है ही है हमारे पास। साथ में जो लोगों ने ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन भी काफी क्वेश्चंस पूछे थे, तो मैं वो उनके काफी जो कॉमन क्वेश्चंस थे उनको एक जगह कंपाइल करके यहाँ पे कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस भी बनाए थे जो आपके साथ शेयर किए थे, जिसमें से आपने 1-2 लिए हैं और ड्यूरिंग द सेशन भी काफी आपने कवर किया है। तो मेरे साथ जो लोगों ने हैंड रेज किया है, मैं एक एक को अनम्यूट करूंगा और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ब्रीफली वो अपना सवाल डायरेक्टली राजेश जी से पूछें। और राजेश जी, क्योंकि टाइम कम है, ऑलरेडी 5 बज रहा है, हम लोग टाइम से 5-7 मिनट डिले चल रहे हैं, तो जैसे वो है ना करण जौहर कॉफी विद करण में रैपिड फायर राउंड करते हैं, सो क्विकली हम लोग सवाल और जवाब को लेते हैं और एक रैपिड फायर राउंड करके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं हेमल कामत जी आपको इनवाइट कर रहा हूँ, आप प्लीज अपना सवाल पूछिए। हेमल कामत जी बहुत काफी समय से ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग जुड़ी हैं, और इंदौर में आपका कॉन्सेप्ट के नाम से ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत बढ़िया काम कर रही है और काफी एरियाज में, स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट के एरिया में काफी अच्छा काम कर रही है। हेमल जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच संतोष जी एंड राजेश जी। बहुत डिटेल आपने, बहुत अच्छा आई ओपनिंग मुझे लगता है कि सारे ऑर्गेनाइजेशंस को एक अलार्मिंग सिचुएशन में दिया है। मेरा बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है, क्योंकि अभी जो रिसोर्स क्रंच है इसमें सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी अगर ऑर्गेनाइजेशंस को लग रहा है तो वो है CSR को लेकर के। तो जो भी CSR 1 रजिस्ट्रेशन, CSR 2 रजिस्ट्रेशन रिसेंटली हुआ था, उसमें हमने तो अपना ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर्ड कर लिया, बट बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन उस CSR 1 में रजिस्टर्ड नहीं हो पाई है। तो मैं चाहूंगी कि इसके बारे में थोड़ा सा आप जरूर डिटेल में बता सके कि कैसे, अगर वो मिस हो गए हैं ऑर्गेनाइजेशन, तो कैसे उसमें रजिस्टर्ड करें। और रिसेंटली कल कुछ अभी अमेंडमेंट आया है CSR को लेकर के,
तो वो भी अगर थोड़ा सा शेयर करे तो बेहतर होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर संतोष जी मुझे अलाउ करे तो क्या हम जैसी ग्रास रूट लेवल ऑर्गेनाइजेशन सोशल स्टॉक एक्सचेंज में एंटर करने के कुवत अभी रख रही हैं? क्योंकि उसमें जो टर्नओवर है वो आई थिंक मिनिमम 1 करोड़ या 10 करोड़ है। तो ये मेरे 2-3 स्पेसिफिक सवाल हैं। Right. स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड हेमल जी, ये सवाल आज नहीं डिस्कस करेंगे हम लोग। इस पे एक पर्टिकुलर सेशन ही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और बहुत जल्दी इस पूरे सोशल स्टॉक एक्सचेंज के एक्सपर्ट्स के साथ हम लोग आपको इनवाइट करेंगे। तो मैं राजेश जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हेमल जी के जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो आप प्लीज एड्रेस कर दीजिए। राइट, तो CSR 1 का जो फॉर्म है वो MCA की साइट पे आप जाएंगे तो वो ऑफलाइन फॉर्म है। वो ऑफलाइन फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल फॉर्म है। ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल्स, डायरेक्टर्स का डिटेल, आपका जो बायलॉज आपको अपलोड करने होते हैं, पैन कार्ड अपलोड करना होता है, और वो MCA की साइट पे जाके आपको अपलोड करना होता है। वो आप अपलोड करेंगे तो आई थिंक 15-20 दिनों में या मैक्सिमम 15-20 दिनों में उसका रजिस्ट्रेशन का अप्रूवल आ जाता है। वो आप किसी भी कॉर्पोरेट्स को दिखा सकते हैं। दैट इज अ वैलिड रजिस्ट्रेशन अंडर CSR। और जो आप CSR 1 की अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें NGOs के लिए सिर्फ एक छोटा सा अमेंडमेंट है। पहले 12A80G था, अब उसमें 1023C भी इंक्लूड हो गया है कि जिसके पास 12A80G नहीं है या जिसके पास 1023C है वो भी एक CSR फंड एक्सेस कर सकता है। बस वो एक छोटा सा चेंज है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो एक और हैंड रेज है, अविनाश सिंह जी हैं। अविनाश जी प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अविनाश सिंह, ललित अविनाश सिंह जी को अनम्यूट कर दीजिए। ओके, अभी जब तक अविनाश जी कनेक्ट हो रहे हैं, मैं हमारे साथ तमिलनाडु से डॉक्टर रेणुका रामाकृष्णन है। रेणुका रामाकृष्णन जी प्लीज आप अपना सवाल पूछिए। Yeah, good evening to everyone. Good evening, Santoshi sir. Very happy to be a part of ISR for many, many years together, I think. I have just a general question that I am an individual volunteer. So how do I pay tax? Actually, to say, as Dr. Renuka Ramakrishnan, I have been paying tax. I have a PAN card, everything. So what is the difficulty in paying taxes? मतलब No, I am a social reformer, sir. Do I need to pay tax extra for this? I'm telling. do you receive any income from any NGO or from any organization? No, sir. I have a Mangalam Charitable Trust, but even that I'm paying tax. So if there is no income, then how will you pay income tax? No, income means I am a doctor. I am a dermatologist by profession. So you receive income, right? Yes, as that a I am part of paying your- tax. That I am So paying tax. For that, you need to pay tax. As a social volunteer, you don't need to pay taxes because as long as you're not getting paid, you don't have to pay any tax. That's what I want. Okay, sir. Thank you so much. This is a question many people have asked me. That's why I asked you, sir. थैंक यू Thank you so रेणुका जी। much. अनुभा मदान है, हरिद्वार उत्तराखंड से, डिवाइन इंटरनेशनल फाउंडेशन से हैं। अनुभा प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए। अनुभा आप अनम्यूट हैं, अभी पूछ सकती हैं आप अपना सवाल। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है। आवाज हेलो यस, अब आ रही है। अनुभा प्लीज। सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं ये जानना चाहूंगी कि व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ATG एंड इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन ATG एंड ATC? और मैं एक चीज और जानना चाहूंगी कि जो 12-वे सर्टिफिकेट है वो कैसे करते हैं? CSR के रिगार्डिंग हमें 12-वे सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, तो उसका भी प्रोसीजर जानना चाहूंगी सर। तो 12A और ATG का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है वो 99% सिमिलर है। उसका एक फॉर्म आता है, फॉर्म 10A, जो कि इनकम टैक्स की
साइट पे आपको ऑनलाइन फाइल करना होता है, जिसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स एज वेल एज बोर्ड मेंबर डिटेल्स एज वेल एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपलोड करने होते हैं। तो वो आप अगर फाइल करेंगे तो सबसे पहले आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलेगा, और अगर Okay. आपने एक्टिविटीज स्टार्ट कर दी है तो आप रेगुलर रजिस्ट्रेशन पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 5 साल तक वैलिड है। और 80 हाँ सेम सेम ATG का भी राजेश same जी थोड़ा process है। प्लीज लाउडली अगर आप बोल सकें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बहुत स्लो आवाज आ रही है। अब आ रही है? हाँ अब बेटर है पहले से, प्लीज। राइट, सो फॉर्म 10A आता है, जो कि ऑनलाइन फॉर्म है, जो कि इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन लॉगिन करके आपको फाइल करना होता है। उसमें ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स, बोर्ड मेंबर डिटेल्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपलोडिंग, ये सारा प्रोसीजर रहता है। आपको ऑनलाइन करना है, बहुत ही सिंपल फॉर्म है, किसी की भी आपको हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल फॉर्म है, आप खुद ही भर सकते हैं इसको। Okay, and there is a difference between ATG and ATC. Yes, so ATG is basically a registration for the NGO in order so that the donor gets tax benefit on the donations. और ATC एक इंडिविजुअल के लिए होता है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है तो उसको टैक्स बेनिफिट मिलता है। लाइक फॉर एग्जांपल FD में इन्वेस्ट करता है वो इंडिविजुअल के लिए, लेकिन FD में 5 years के लिए इन्वेस्ट करता है या इक्विटी लिंक म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है, so that deduction is allowed to an individual from his taxable income. Okay, okay, thank you so much, sir. थैंक यू अनुभा, राजेश जी थैंक यू। Thank अभी you. अविनाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और अनम्यूट भी हैं। अविनाश जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। अविनाश जी। Thank you, Santosh ji and Rajesh ji. Thank you for very nice presentation. There was some issue, I think, host ही allow कर सकता है unmute, आप अपने से नहीं कर सकते, इसीलिए शायद थोड़ा लेट हुआ। मेरे 2 सवाल हैं एक्चुअली, वो एक तो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, दैट व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स, कौन कौन से ऐसे पॉलिसी और प्रोसीजर्स आइडियली एक ऑर्गेनाइजेशन के पास होने चाहिए, लिस्ट ऑफ प्रोसीजर जो एक आपको एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन की तरह दिखा सके। और दूसरा सवाल है वो है आपका और FCRA कंप्लायंस के अलावा और कौन कौन से खतरे हैं जिसकी वजह से, कौन कौन से रिस्क हैं जिसकी वजह से आपके FCRA पे इम्पैक्ट आ सकता है, आपके FCRA कैंसिल हो सकता है, क्योंकि ये कंप्लायंसेस है, हम सारे कंप्लायंसेस भी फॉलो करें, फिर भी क्या ऐसे चांसेस हैं कि हमारे FCRA कैंसिल हो जाए। एक और सवाल था कि अगर आप थोड़ा सा सेक्शन 8 कंपनी फॉर्मेट के बारे में बता सके, जैसे आपने बताया सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिए, सो उस तरह से कौन सा फॉर्मेट फॉलो करते हैं हम और क्या क्या होना चाहिए उसके अंदर फॉर रजिस्ट्रेशन सेक्शन 8 कंपनी। तो ये 3 सवाल थे मेरे। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू संतोष जी। थैंक यू अविनाश जी। राजेश जी प्लीज। तो सबसे पहले तो आपकी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स की अगर हम बात करें तो एक NGO में जो आइडियली कुछ पॉलिसीज होनी चाहिए जो कि डिफाइन होनी चाहिए, जिसे कि हम फाइनेंस पॉलिसी कह सकते हैं, HR पॉलिसी कह सकते हैं, जिसमें HR रिलेटेड सिस्टम प्रोसेसेस हों, प्रोक्योरमेंट पॉलिसी हो सकती है, जो कि हो सकता है फाइनेंस पॉलिसी में भी इंक्लूडेड हो, ट्रैवल पॉलिसी हो गया, लीव पॉलिसी हो गया, अटेंडेंस पॉलिसी हो गया, एंड इसके अलावा चाइल्ड प्रोटेक्शन, अगर आप बच्चों के साथ काम करते हैं तो चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी हो गया, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिसी, ये विशाखा गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मैंडेटरी है, तो पॉश पॉलिसी होना, वो सारी पॉलिसीज, ये सारी पॉलिसीज एक NGO में होनी चाहिए। सेकेंडली आपका जो क्वेश्चन था कि ऐसे और कौन से कंप्लायंस है जिससे हमारा FCRA इम्पैक्ट कर सकता है, अगर FCRA की सिर्फ बात करेंगे तो सिर्फ FCRA के कंप्लायंसेस हैं और कोई कंप्लायंस नहीं है जिससे आपका FCRA इफेक्ट होगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपके इनकम टैक्स के कंप्लायंसेस पूरे नहीं है तो आपका FCRA कंप्लायंस, तो आपका FCRA रजिस्ट्रेशन इम्पैक्ट कर सकता है, लेकिन FCRA को बचाने के लिए आपको FCRA कंप्लायंसेस ही फॉलो करने हैं। तीसरा आपका जो सवाल था, आई थिंक मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, तीसरा किस चीज पे सवाल था आपका?
सेक्शन 8 and 25 हाँ, कंपनीज के 8 कंपनी फॉर्मेट पे था। हाँ, सेक्शन 8 कंपनी बेसिकली एक अगेन एमसीए की साइट पे एक फॉर्म आता है, वो आपको फिल करके उसमें नेम अप्लाई करके, अब पहले नेम का अप्रूवल लेना होता है, उसके बाद आपको सेक्शन 8 कंपनी का कंपनी एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, जिसके अंदर थोड़ी सी डिटेल्स होती हैं, क्या आप काम करते हैं, क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सारा चीज जब रहता है उसके बाद आप फाइल करके उसको सबमिट करते हैं, तो फिर एमसीए आई थिंक 30 से 45 डेज लेता है आपको रजिस्टर करने के लिए। यस, थैंक यू राजेश जी। एक और लास्ट क्वेश्चन हम लोग टेकअप करना चाहेंगे। नीलेश पारस्कर हैं हमारे साथ, उन्होंने हैंड रेज किया है। नीलेश जी, आप अनम्यूट करके प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। थैंक यू सर। राजेश सर, आपसे मेरा एक सवाल था। हेलो, मेरी आवाज आ हाँ रही जी, है आपको? हाँ जी, हाँ जी, बताइए बताइए। हाँ, तो जैसे कि आपने बताया, एफसीआरए का जो फंड होता है उसका एक्सपेंडिचर 3 जगह पे इस्तेमाल हो सकता है, एक तो कैपिटल या प्रोग्राम या एडमिन पे। तो मेरा सवाल ये था कि कितना परसेंटेज एक्सपेंसेस हम एडमिन पे कर सकते हैं, और दूसरी बात, क्या प्रोग्राम का जो स्टाफ रहता है, जो प्रोग्राम एक्टिविटी करते हैं, उनका जो स्टाफ रहता है, उनकी सैलरी एडमिन एक्सपेंडिचर में कवर होती है या प्रोग्राम एक्सपेंडिचर में? अच्छा, तो एडमिन का खर्चा आप 20% ऑफ द ओवरऑल एक्सपेंडिचर आप एडमिन के ऊपर खर्च कर सकते हैं। मान लीजिए आपका टोटल एक्सपेंडिचर पूरे साल में 100 रुपए था, तो आप 20 रुपीज एडमिन के ऊपर खर्च कर सकते हैं। दूसरा जो आपका सवाल था कि प्रोग्राम स्टाफ की सैलरी क्या एडमिन में काउंट होगी? नहीं। अगर प्रोग्राम फील्ड लेवल स्टाफ है जो कि प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में इन्वॉल्व है, तो उसकी सैलरी प्रोग्राम में काउंट होगी, एडमिन में काउंट नहीं होगी। ओके, और एक सवाल था सर एफसीआरए के बारे में। अभी जैसे कि न्यू दिल्ली में हमने डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट ओपन किया है एफसीआरए का, हाँ जी। तो इससे पहले हमारा जो पुराना बैंक अकाउंट था जो डेजिग्नेटेड था, जिसमें एफसीआरए का फंड आता था, तो क्या वो बैंक अकाउंट हम एज अ यूटिलाइजेशन बैंक अकाउंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, वो यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका शर्त है कि आपने जब FC6C भरा होगा, तो क्या आपने इंटीमेट हाँ। किया था कि ये मेरा यूटिलाइजेशन अकाउंट रहेगा? अगर वो किया था, वो अप्रूवल आया है, तो फिर आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, थैंक यू, तो इससे थैंक पहले यू। मैंने नहीं किया था, तो अभी मैं वो कर सकता हूँ? अभी कर लीजिए वो, हाँ अभी कर लीजिए, कोई बात नहीं, अभी कर लीजिए, जब अप्रूवल आ जाए उसका तो आप कर सकते हैं। नीलेश जी, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। आप बाकी के क्वेश्चंस को अलग से भी आप लिख के भेज सकते हैं। मेल आईडी जो है हमारा NGO-clinic@isrn.in पे। मैं एक और हमारे बहुत पुराने मेंबर हैं ISRN के, जीके भटनागर जी, उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना क्वेश्चन डायरेक्टली जल्दी से पूछ लें। जीके भटनागर जी, प्लीज अनम्यूट करिए और आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। राजेश जी, मेरा ये है कि यदि CSR फंड अप्रूव हुआ है, तो कोई स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट है, कोई रिटर्न फाइल करना पड़ता है कंपनी के साथ या गवर्नमेंट के साथ? वो पूछना था। आपको कुछ फाइल नहीं करना है CSR के लिए, आपको जो डोनर रिपोर्टिंग है वो कंप्लीट करना है। लेकिन हाँ, CSR में अगर मान लीजिए आज आपको फंड मिलता है 23 सितंबर को, तो आपको वो 31 मार्च तक खर्च करना है। तो आप ऐसा कोई प्रोजेक्ट मत लीजिएगा कि जो 1 साल, जो 6 महीने, जो अगले साल ओवरलैप करे। आपको जो भी फंड मिलता है वो आपको 31 मार्च तक खर्च करना है। अच्छा, तो जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट कुछ सबमिट करना वो पड़ता है? आपको कंपनी को एज पर ग्रांट एग्रीमेंट करना होगा, कोई स्टैट्यूटरी फाइलिंग नहीं करनी, कोई गवर्नमेंट को फाइलिंग नहीं करना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू भटनागर जी। थैंक यू सर, थैंक अभी ऑलमोस्ट हमने सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं, और कुछ क्वेश्चंस जो अलग से आए हैं वो राजेश जी आपने ऑलरेडी एड्रेस किया था अपने टॉपिक में।
अपने लेक्चर में। तो आई होप कि बहुत सारे जो इमर्जिंग इश्यूज थे, जो चैलेंजेस जो लोग फेस कर रहे थे या जो डाउट्स थे, वो ऑलमोस्ट क्लियर हुए हैं। और हम इस प्रोग्राम में जैसे मैंने कहा कि ये एनजीओ क्लिनिक प्रोग्राम का पर्पस ही है कि हम आपको एक एक्सपर्ट सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर पाए, सो दैट आप रेगुलर बेसिस पर स्मूथली अपना काम कर सकें। मैं आपको जल्दी से मैं जाऊं, फरजाना वेट कर रही हैं आगे के प्रोसीजर के लिए। तो मैं 5 मिनट में एनजीओ क्लिनिक का जो मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि उसके बारे में मैं बताऊंगा, तो मैं उसके बारे में एक आपको जो इसका ओवरऑल फीचर ऑफ द एनजीओ क्लिनिक है, या लाइक हाउ एनजीओ क्लिनिक हैज रन, अगर आप चाहें तो ये देख सकते हैं कि ये स्लाइड है जहां पर बेसिकली ये प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म फॉर सस्टेनेबल सोल्यूशन है, जहां पर टू वे कम्युनिकेशन है, जहां पर लोग आप वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन कांटेक्ट कर सकती हैं, और यहाँ पर पूल ऑफ एक्सपर्ट्स हैं जो आपको एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मंथली बेसिस पर तो हम लोग एक एक्सपर्ट्स के साथ इंटरेक्शंस करेंगे ही एवरी मंथ। जैसे हम लोगों ने तय किया था कि हर महीने के 4th फ्राइडे को 4 o'clock हम आपके साथ मिलेंगे, लेकिन ये वहां पर तो एक ओवरऑल डिस्कशन होगा, बट 1-to-1 डिस्कशन, और जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है या जो उनको एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट की जरूरत है, वो ये एनजीओ क्लिनिक के माध्यम से आप इंडिविजुअली हमें लिख सकते हैं, फोन कर सकते हैं, और हम आपको जो जिस सब्जेक्ट की आपको रिक्वायरमेंट है, जैसे कि यहाँ पर आप स्लाइड में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है, कम्युनिकेशन है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, ह्यूमन रिसोर्स, एक्सपर्ट ह्यूमन रिसोर्स है, लीगल एंड फाइनेंस कंप्लायंसेस से रिलेटेड है, टेक्निकल सपोर्ट है, ये सब आपको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मिल सकता है। और ये कोई कंसल्टेंसी नहीं है, ये यहाँ पर हमने एक एक्सपर्ट पूल ऑफ एक्सपर्ट्स को एक जगह लाने का काम किया है, और वो आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे, तो जिससे कि आपको डायरेक्टली रिलीफ मिल सके। तो मैं इतना ही बताते हुए आज के कार्यक्रम के एक्सपर्ट राजेश जी को मैं धन्यवाद दूंगा, और फरजाना से कहूंगा कि वो आगे प्रोसीड करें। फरजाना, प्लीज टेक ओवर। थैंक यू सो मच सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, आपने हर टॉपिक को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छी तरीके से कवर किया है। And that was an amazing, wonderful, interactive session, and we wish we could keep on taking questions if it was not due to the time constraints. But at the end of the presentation, we will share our contact details where you can connect with us for any further questions and queries. I really hope that it was knowledgeable for all the participants present today. हम आशा करते हैं कि हम इसी तरह से open-ended discussions करते रहे, brainstorming करते रहे, और grassroots organizations की sustainable journey को आगे बढ़ाते रहे. It was really wonderful to have you all. Based on the discussion, since we are covering broader subjects, the challenges of the organizations, its intervention and incorporation are all different. Any queries that you might have, kindly email us on ngoclinic@isrn.in. Yes, I repeat once again, you can even see it on our screen, ngoclinic@isrn.in. These contact details have also been shared in our first episode of NGO Clinic. If you have any questions or queries, please feel free to share within 1 month from today so that we can address them accordingly, depending on questions asked on the basis of each episode. I would now like to begin with the vote of thanks. It was indeed a breathtakingly amazing session, and it's so encouraging to listen to all of you, to understand the ways to be a self-sustainable organization and to work towards the journey together. At the very outset, I would like to take the opportunity to show my gratitude to our subject matter expert, Mr. Rajesh Balani ji. Thank you so very much for joining us and for sharing your experiences through an insightful conversation. We understand the time constraints, and we are immensely thankful to you for agreeing to join us in such a short notice
and taking out your valuable time for this webinar. We hope that you have also had an amazing time during the webinar and interacting with the audience in such a fundamentally important topic. We hope that we will get your cooperation and support in our upcoming webinars and conferences on this topic. We would like to thank you once again from the bottom of our hearts. I would also like to thank our CEO, Mr. Santosh Gupta, and all my colleagues for supporting this meaningful event and helping to drive it towards success. Last but not the least, I would also like to thank my dedicated teammates, Kritika, Lalit, Gaurav, Manoj, and Somadeep for taking a lead in this event, and sincerely thank the communications and IT team as they are the very backdrop of this event. Thank you so much, guys. Last but not the least, I'm grateful to all our partners, member organizations, and audience for joining and proactively participating in this event. As an organization, we hope that this session would definitely support the audience, and we will definitely be there for the further course. We would also like to make an announcement here for our next session that has been scheduled to take place on 4th of November 2022, and the topic this time would be winning factors while writing proposals. Once again, thank you all for your valuable time, patience, and dedicated interest to listen to us and to participate with us. We would now like to officially close today's session with a hope to see you again soon. We also wish you a happy festive season ahead as Durga Puja and Diwali are knocking at our doors. Stay safe and stay sane, everyone. Enjoy your weekend. See you all at our next episode of NGO Clinic. Until then, goodbye and alvida.